Hello everyone, welcome to our channel Dream University, which is a platform for guiding the students who aspire to go to various central universities like DU, JNU and others. Okay, I am Devanshi Kaushik and I teach history. Currently, I'm pursuing my master's in history from DU, and I'll be guiding you for DUET 2023. Okay. In order to do that, today we will be discussing the last year question paper for the entrance of DU, for masters, of course. We are discussing here for masters. So I'll be discussing briefly about the question paper that was there for masters last year. क्योंकि उससे क्या होता है कि हम लोगों को टॉपिक्स मिलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एक्चुअली जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यू आर ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड. तो जनरली समझ में नहीं आता है दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. सो उसके लिए क्या होता है कि हमें वी हैव टू जस्ट लुक फॉर टॉपिक्स, दैट व्हाट टॉपिक्स आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट व्हाइल रीडिंग फॉर एन एंट्रेंस. ओके, so in order to do that हम लोगों को last year question papers definitely analyze करने चाहिए. I'm not saying we have to leave some topics or we have to read certain topics only. We have to read all the topics, but there are certain topics which you need to place special focus upon, right? That's what I meant. So वो हमें कहाँ से पता चलेगा? Last year question papers से, और वो हम analyze करने वाले हैं. And definitely जो हमारा batch आएगा ड्रीम यूनिवर्सिटी पे मास्टर्स हिस्ट्री के लिए, तो उसमें ये सब कुछ ऑफ कोर्स मैं पूरा उसे फिल्टर करके एनालाइज करके but I mean I'll be discussing at least one question paper here which will be available for everybody. I mean this discussion will be available for everybody so that you guys can at least get first hand help regarding how to go about it. Okay, so जो भी क्वेश्चंस इसमें होंगे उन टॉपिक्स को तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, so that's the first thing I want to convey. So let me begin. Okay, so here's the first question which you can see. ठीक है, age of consent bill 1891 raised the age of consent to. ये एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में है जो आप लोगों ने डेफिनेटली अपने ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा. ठीक है, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में क्या था कि मतलब 10 to 12 years करी थी. बेसिकली द आंसर इज 12 years. तो उन्होंने 10 to 12 years कर दी थी जो एज है, because there were girls who were consuming, like they consummated their marriage before the age of 12 and they rarely get their menstruation before that. So like इसलिए जो एज थी वो 10 to 12 years करी थी. अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? द एज ऑफ कंसेंट बिल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अच्छे से भी क्या, you should know what is age of consent bill and you should know in which year it was it came into force, in which year it was passed. Okay, so you should remember all these things. Okay, and उसमें क्या था? यही था कि मतलब जो मैरिज की एज है वो नहीं बढ़ाई जा रही है, मैरिज पहले ही हो जाएगी, but the bride will not be cohabiting. I mean it criminalizes a cohabitation with the wife before the age of 12. जिससे जो कंज्यूमेशन है मैरिज में वो 12 के बाद वो साथ नहीं रहेगी तब तक जब तक वो 12 years की नहीं हो जाती. नो मैटर यू मैरी हर, तो वो अपने घर ही रहेगी, लॉस के घर नहीं रहेगी. that's what I meant by that. ठीक है, तो ये हम लोग को एक टॉपिक में एज ऑफ कंसेंट बिल which we have to read nicely. We have to just keep in mind what it is, in which year it was passed, and so on and so forth. What were the maybe there were some people who were resisting it, so थोड़ा बहुत उनका नाम. So I mean of course you don't have to do it subjectively. This is very objective. These are very objective things. So the year, the age, कितने 10 to 12 करी है या 10 to 14 करी है. और ये क्वेश्चन मैंने जनरली देखा है कि ये आ जाता है एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए, है ना. इसकी इसी की तरह शारदा एक्ट भी है, तो इसके तरीके के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करेंगे. लाइक शारदा एक्ट तो वो भी यू विल बी प्रिपेयरिंग एंड डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग ऑल दिस इन माय बैच. Okay, so now the second question, enough of discussion with the first one. Vycom Satyagraha was launched in Kerala too. Vycom Satyagraha देखिए आप लोगों ने डेफिनेटली शेखर बंदोपाध्याय आप सबने पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट उसका एक चैप्टर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए. उसमें एक चैप्टर है रिफॉर्म मूवमेंट्स को लेकर, है ना, जो भी आई गेस 19th century में भी हुए थे बहुत सारे, or there were so many reform movements and they were that were started and they were occurring in early 20th century. Okay, 1900 से लेकर 1950 के बीच में बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, है ना, जो मतलब
for various reasons, like entry of the lower caste into the temples. Okay, कुछ लोगों ने I'm sorry, some people wanted to just stick to the old norms like वो हिंदू राष्ट्र and everything. So उसी तरीके से बहुत सारे रिफॉर्मर डिफरेंट रीजंस की वजह से चल रहे थे. तो उसी का एक पार्ट था वाइकॉम सत्याग्रह. तो इससे हमें पता चलता है कि लाइक द रिफॉर्म मूवमेंट वाला टॉपिक जो है, वी हैव टू स्टडी इट वेरी नाइसली, एंड इवन आई विल सजेस्ट यू दैट टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. जो भी ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, इन सब के बारे में है. उसके अलावा भी देयर वर लॉट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट वर ओकरिंग, लाइक वाइकॉम सत्याग्रह हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गया, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हो गया. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द लीडर्स एसोसिएटेड विद देम, द ईयर दे occurred in, and the year they got successful in, and the major purpose behind those movements. तो आपको मेजर यही कवर करना होता है जब आप किसी मूवमेंट के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के लिए पढ़ते हैं. लाइक आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको एक तो उसका पर्पस पता होना चाहिए, why it was started, in which year it was started, maybe the main leaders that were involved, or a very dynamic figure that was involved into it, और उससे ज्यादा यही, या और ये भी पूछ सकते हैं कि लाइक कौन सा मूवमेंट था जो इस ईयर में लॉन्च हुआ था, इस रीजन की वजह से हुआ था. तो यू शुड आल्सो रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवमेंट. सो वाइकॉम सत्याग्रह लॉन्च हुआ था टू ओपन द पब्लिक रोड्स टू टेंपल्स फॉर द एंट्री ऑफ द लोअर कास्ट. ओके, तो ये इसके लिए लॉन्च हुआ था. ऐसे ही एक दो मूवमेंट और भी लॉन्च हुए थे. सो यू शुड आल्सो रिमेंबर देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज मूवमेंट्स फॉर्म्ड अ डायनामिक लीडर इन अच्युतानंद. अच्युतानंद, अब इसमें देखिए लीडर का नाम है, ठीक है, मतलब कौन से मूवमेंट, वही मैं आपको बता रही थी कि आपको लीडर का नाम याद रखना है, आपको मूवमेंट का भी रखना है कि कौन सा मूवमेंट. ये भी पूछ सकते हैं कि ये लीडर कौन सा मूवमेंट से एसोसिएटेड है, तो वो कैसे पता चलेगा, या इस मूवमेंट में मेन क्या था. लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था. तो सारे मूवमेंट्स, उनका मेजर पर्पस, उनका मेजर लीडर, उनका मेजर ईयर, ओके, या उसकी वजह से क्या चेंज आए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर नाइसली, रिमेंबर बाय हार्ट. और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज मैं जानती हूँ बहुत सारे. तो आप एक लिस्ट बनाइए, हर मूवमेंट को लिख के उसका मेजर लीडर लिखिए और एक ईयर लिखिए उसका. तो वो लिस्ट आप खुद बना सकते हैं, और आप बैच लेंगे तो डेफिनेटली आई प्रोवाइड दैट. ओके, सो इसमें क्या है, ये आदि हिंदू मूवमेंट था, जिसमें कि लाइक देयर वाज अ वेरी डायनेमिक लीडर, ऑफ कोर्स, अच्युतानंद. उन्होंने मतलब he was educated, he himself was an untouchable, and he was educated by Christian missionaries. और उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, और उन्होंने जो अनटचेबल्स हैं उनकी लाइक उनको जो ब्राह्मणिकल ऑपरेशन है उससे रेज करने के लिए काफी हेल्प किया था. और उस पूरे मूवमेंट को आदि हिंदू मूवमेंट कहा था. उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ा बहुत और एम्प्लॉयमेंट करवाया उनको. तो ऑल दीज थिंग्स ही डिड फॉर द अनटचेबल्स सो दैट ही कैन रेज देम फ्रॉम द everyday operation that was conducted by Brahmins. Okay, so I already explained you how to go about the movements. All right, so let's move on to the next question. This is from modern history again. Which of these and I want to say modern history is really important, so focus on that very meticulously. Which of these was not a tool used by nationalists against 1905 Bengal partition? अब देखिए, आप सबको पता है कि जो मेजरली हिस्ट्री शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट या उसके बैकग्राउंड की, एक तरीके से मैं कहूंगी कि जो नेशनल मूवमेंट है उसका बैकग्राउंड जो शुरू होता है मेजरली वो बंगाल पार्टीशन से शुरू होता है ना. सो बंगाल पार्टीशन के बाद ही मतलब नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में एक स्प्लिट आ गया था, है ना. That later on led to the pseudo split. Anyway, we're not going on to that अभी. So 1905 बंगाल पार्टीशन में आपको पता है कि जो पार्टीशन था वो सबको लगा था कि that was based on communal lines, और ऐसा नहीं होना चाहिए. इस तरीके से तो पॉपुलेशन में डिवाइड आ जाएगा काफी, और लोग रिलीजन, एक तरीके से रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो गए हैं ज्यादातर, ऐसा लगा सबको लीडर्स को. तो उसमें उन्होंने क्या क्या टूल यूज किए थे. अब आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए, एक तो कि बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, बंगाल पार्टीशन क्या था, कौन कौन से प्रोविंस कहाँ हुए थे डिवाइड, और उसकी वजह से लीडर्स को लग रहा था कि दैट वर डिवाइडेड ऑन कम्युनल लाइंस, दैट वाज बेसिकली टू डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्युनिटीज, एंड इट विल बी हैविंग वेरी deep and dangerous consequences on the unity of India, which was very necessary at the time when we were being ruled by a alien power, that was the Britishers. ओके, सो उन्होंने स्वराज डेफिनेटली क्लेम किया था उस टाइम,
आप एलिमिनेटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं. स्वराज किया था कि लाइक दिस इज आवर ओन कंट्री एंड वी आर हियर टू डिसाइड फॉर आवर ओन फेट, यू आर नोबडी टू डिसाइड फॉर अस. एंड बॉयकॉट डेफिनेटली किया था उन्होंने, है ना. बॉयकॉट किया था सब कुछ, जो भी उनका गवर्नमेंट जॉब्स था या फिर जो भी एनीथिंग एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट. लॉयर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, लोगों ने काम करना बंद कर दिया ब्रिटिशर्स के लिए. whatever they were the jobs they were assigned into the British Parliament were all boycotted by people, and people came to roads and all that chaos happened, and they just violently protested against the like all partition. And what was that movement called? That movement was called Swadeshi movement. Okay, so Swadeshi, okay, like we will wear clothes which are made in our own country. Okay, replicated foreign clothes and foreign shop, liquor shops also. So ये सब हुआ था, तो डेफिनेटली उसका स्वदेशी मूवमेंट उसका नाम था, तो वो तो एसोसिएटेड इससे है. बॉयकॉट भी किया था, स्वराज भी डिक्लेयर किया था. सो व्हाट इज नेम, सत्याग्रह नहीं हुआ था. एंड प्लीज रिमेंबर, सत्याग्रह वाज अ टर्म and a tool which was used after Gandhi came. Okay, अगर उससे पहले कोई भी लिख रहा है, अगर कोई लिख रहा है स्वदेशी सत्याग्रह, that is wrong. Swadeshi movement, Satyagraha as a term was coined by Gandhi when he returned from South Africa. Okay, so let's move forward. Okay, अब ये देखिए, ये हाँ एक इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं डीवीडी में, जो देखा गया है काफी इयर्स से कि लाइक कौन सी बुक कौन से हिस्टोरियन ने लिखी है. आपको बहुत सारी मतलब बुक्स का नाम जो है वो लर्न करना पड़ेगा. तो इसके लिए यार देयर इज नो option left but to just remember and learn and kind of cram these names, because ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हिस्टोरियोग्राफी पे. जो डीयू स्टूडेंट्स हैं और डीयू में ही आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, उनको पता होगा हिस्टोरियोग्राफी इज रियली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट. एक सेपरेट टॉपिक होता है, उसमें हिस्टोरियंस के डिबेट होते हैं. तो कोई भी बुक है और उसके साथ ठीक है उसका मतलब ऑथर है, तो वो आप याद करिए. इसके लिए एक प्रॉपर लिस्ट आपको बना के दी जाएगी, जो हमारा बैच स्टार्ट होगा फरवरी में. I mean the initial days of February we'll be starting our batch for masters history. So I will be preparing a proper list, okay, with the authors and with the books जो भी important है, taking it all पूरा क्रक्स उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. Okay, and even other students who will not be taking our batch, वो भी ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपको जहां से भी जो बुक्स मिल रही हैं कि हाँ जो इम्पोर्टेंट है हर टॉपिक से रिलेटेड, वो और उनके ऑथर आप एक जगह लिख लीजिए एंड रिमेंबर, जस्ट लर्न देम अप. उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें. आप देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन रिमेंबर इट. ओके, सो इसका तो आंसर है लक्ष्मी सुब्रमण्यम. ओके, सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक पे इन्होंने बुक लिखी है. Who was a leader of self respect? मैंने आपको बताया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी हुआ था, वो भी लोअर कास्ट की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए हुआ था. उनकी लाइक allow them with entry into temples. There were 2-3 issues that were raised, but all were in the favor of the lower caste, और उनकी जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. So इसमें ऑफ कोर्स सबसे आगे and do not confuse Ambedkar with Periyar. Okay, Ambedkar was definitely a figure when it comes to the condition of lifting the condition of the lower caste. And but in self-respect movement, Periyar was very active. Okay, Periyar was very active. He is also known as Ramaswamy Naikar. So Periyar आपने नाम सुना होगा specifically in so many protests and that occur in DU, and so सब में होता है in JNU. So Periyar is a figure. ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, और मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने पहले भी बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या उसके मोटिव्स थे, क्या उसका एम था अचीव करना, किसने स्टार्ट किया था, पेरियार ने, और किस ईयर में हुआ था. तो ये सब आपको एक मूवमेंट के बारे में याद रखना ही है, और क्वेश्चन इन्हीं चारों चीजों के बारे में आते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, where were the head for again theosophical society जो था वो भी एक मतलब मूवमेंट कहेंगे या फिर एक it was a kind of a society and a community of people, जिसमें कि एनी बेसेंट जिनके बारे में आपने सुना होगा, NHP Blavatsky was very crucial. तो उनके जो हेडक्वार्टर्स एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड क्योंकि जो मतलब बेसिकली दे वर पीपल हु वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू सोसाइटी, ब्राह्मणिकल सोसाइटी, और उन्होंने मतलब उसका पूरा जो एसेंस है they were losing, I mean the society is losing the essence
real essence of the so-called Brahminical norms and Brahminical system, Brahminical order. So they were very much influenced by that. तो वो उसको वापस लाना चाहते थे. They wanted to revive the essence of the actual Brahminical order and you know the Indian norms and Indian customs and rituals. So they were very much influenced by that. So Theosophical Society में H.P. Leavitt का है and anyways they were very active. और इनका जो headquarters है that were in Madras. So headquarters कहाँ पर है? Madras. Okay. Indo-Widow Remarriage Act है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती very active in that. तो 1856 में हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया. जो भी acts हैं वो क्या है, obviously आपको तो इसके नाम से पता चल रहा है. Widow Remarriage Act was meant for allowing the widows to remarry and it should not be criminalized. They can marry if they want to marry again. So उसके लिए ये एक्ट जो है पास किया गया था और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है दयानंद सरस्वती ने प्ले किया था. Okay, who was an active member of the आर्य समाज also. तो उन्होंने वो 1856 में करवाया था. उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये जरूर आएगा एक पॉइंट की लाइक ये एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और ये कब पास हुआ था? 1856 में हुआ था. Okay, very basic. Which of these book was written by पंडिता रामाबाई? पंडिता रामाबाई के बारे में हम तब भी पढ़ेंगे जब एज ऑफ कंसेंट और सार राइट के बारे में पढ़ेंगे. तो उन्होंने बुक लिखी थी हिंदू का हाई कास्ट हिंदू वुमेन. Okay, so this is again a very factual question which cannot be explained with the background. It's just a fact. Okay, which of these was not an issue or a method used by Gandhi non-cooperation movement? Okay, non-cooperation movement के बारे में आप सब जानते हो. 1920 to 1922 है ना. It was taken back by Gandhi due to चौरी चौरा incident. Non-cooperation movement के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या हुआ. वही ऑलमोस्ट जो स्वदेशी मूवमेंट वाला था. गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दी, सारा कुछ बॉयकॉट कर दिया, फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कर दिया, शॉप्स पर नहीं गए, अपना मतलब they were wearing their own clothes like khadi. Okay, homemade, I mean country, the clothes that were made in their mother country. Okay, तो बॉयकॉट कर दिया. और हाँ, उन्होंने उसको खिलाफत इशू से भी क्लब कर दिया था, due to which both the communities, Hindus and Muslims, both participated on a wide scale in the non-cooperation movement. So khilafat, boycott, both were used. And Swadeshi definitely. How? Because Swadeshi, in the sense the clothes and the things that are produced and then they are manufactured in our own country will only be used. Okay, and we'll boycott all the foreign goods, foreign clothes and everything. So Swadeshi was also used. What was not used was salt satyagraha. Okay, remember salt satyagraha. Salt क्यों? क्योंकि that was a part, that was an issue that was raised in civil disobedience. ठीक है, हमें सबको पता है वो जो सॉल्ट मार्च की थी गांधी ने. So that happened and that was chosen as a tool in the civil disobedience movement, not in the non-cooperation movement. All right, so इसमें आप elimination method भी use कर सकते हैं easily. बाकी तो अगर आप साफ देखें जिसने पढ़ा हुआ होगा non cooperation और civil disobedience के बारे में, उसको सीधा ही पता चल जाएगा कि salt satyagraha was not an issue to be raised and salt was not used as a tool in the non cooperation movement, rather it was used in civil disobedience. Okay, what is E.V. Ramaswamy Nayakar better known as? it इसको ही मालूम होगा, पेरियार है ना. तो जब भी आप इनके मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, लोअर कास्ट मूवमेंट्स के बारे में, ओके, जिसमें अम्बेडकर का भी नाम आएगा आगे, उनके भी वर्क्स आएंगे, तो उसमें आपके पास होगा पेरियर यानी कि रामस्वामी नायकर के बारे में. वो फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया ही जाएगा. लाइक ही इज आल्सो नोन एज पेरियार, बेटर नोन एज. बेसिकली उनको पॉपुलरली पेरियार, आपने पेरियार ही ज्यादा सुना होगा. रेयरली पीपल कॉल ईवी रामस्वामी नायकर. ओके, सो फॉरवर्ड. रेयोतवारी सिस्टम इज एसोसिएटेड विद थॉमस मुनरो. ठीक है, थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था. अब देखिए ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने 2-3 तरीके के सिस्टम स्टार्ट किए थे. रेवेन्यू के लिए परमानेंट सेटलमेंट था और महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम था, है ना. पेजेंट्स और जो भी था, जोतेदार्स भी थे. There were several names used for the zamindars, है ना. There were several names used for the peasants, like ryots कहते थे peasants को. So there was a ryotvary system. ठीक है, system of revenue. तो वो किसने स्टार्ट, तो जितने भी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू है वो क्या क्या थे, उनके नेम्स प्लस उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंस था. मतलब बेसिकली एक रेयोतवारी सेटलमेंट क्या है, महलवाड़ी सेटलमेंट क्या है,
तो उसके बारे में ये कि वो क्या है और मेजरली कौन से जो गवर्नर जनरल हैं या फिर जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल उसके साथ एसोसिएटेड है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो द्योत वाली सिस्टम जो है वो थॉमस मुनरो के थ्रू स्टैब्लिश किया गया। Moving forward, Hind Swaraj is a critique of, again आपको इतना पता होना चाहिए, like Hind Swaraj जो है that was critique of modern civilization. Books and the names of the book once again. I'm sorry. The term subaltern and subaltern studies collective draws from the work of. ठीक है, the term subaltern and the subaltern studies किसके वर्क से आता है? subaltern जो वर्ड है subaltern studies में, you all know there are four school of thoughts है ना, colonialist है ना, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट एंड सबाल्टर्न। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स रह चुके हैं ऑलरेडी और उन्होंने जिन्होंने ड्यू से करा, डेफिनेटली पता होगा देयर आर फोर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो उन सबके बारे में ब्रीफ आपको किया ही जाएगा और मतलब मैं तो करूंगी ही अगर मैं बैच में आपको पढ़ाती हूँ या आप मेरे बैच में आते हैं, बट अदर देन दैट those who are not who will not be taking my batch, even those people can briefly read about all the school of thoughts कि उनके मेन क्या हैं या उसमें मेन कौन historians रहे हैं। So there are four approaches to view history. Okay, subaltern, Marxist, nationalist, and one more Marxist, nationalist, subaltern, as well as this colonialist. So you should be knowing everything about, not everything exactly, but basic and briefly about all the four school of thought. तो आपको obviously पता होगा कि like अगर आपने पढ़ा हुआ है already तो भी you know this answer. It was Antonio Gramsci जिसके वर्क से subaltern word लिया गया था in the subaltern studies. Okay, इसको तो आप elimination method से भी कर सकते हैं, like Karl Marx definitely Marxist approach इन्हीं से आता है, तो Karl Marx, Michel Foucault definitely not. And Mahatma Gandhi obviously no. So Antonio Gramsci, even elimination method could have been used for this question. And moving forward, in which part of the colonial India was the inner line of regulation 1873 introduced? अब देखिए जब आप ब्रिटिशर्स की पॉलिसी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज लाई हैं या उन्होंने क्या क्या एक्ट्स लेकर आए हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए या ऑब्वियसली अपने बेनिफिट्स के लिए लेकर आए जो भी उन्होंने एक्ट इंट्रोड्यूस करे हैं, एंड उसमें सारे एक्ट्स आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, सारे एक्ट्स तो आपको पढ़ने ही हैं, सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, उनकी डेट पढ़नी है, उनमें क्या क्या है वो भी पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ईयर तो डेफिनेटली याद रखना है सबका। In which part of colonial India was the inner line of regulation in 1873 introduced? It was introduced in northeastern India. Okay, किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? इसलिए क्योंकि जो इंडियंस हैं स्पेसिफिकली है ना, the subjects right now ruled by Britishers at that time, I mean at that time ruled by Britishers, उनको एक परमिट लेना पड़ेगा ट्रैवल करने के लिए इन एरियाज में। क्यों ऐसा किया नॉर्थ ईस्ट एरियाज में? क्योंकि उनको अपना सोल ट्रेड मोनोपोलीज पे एस्टैब्लिश करना था, है ना, कि मतलब यहाँ पे हम ही लोग ट्रेड कर सकते हैं। अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने उन एरियाज को प्रोटेक्टेड कर दिया, और किसी भी इंडियन को अगर वहां जाना है तो एक इनर लाइन परमिट लेगा तभी वो वहां जा सकेगा। तो वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको इशू करते थे, एंड देयर वर आल्सो सो मेनी प्रॉब्लम्स, नहीं करते थे एंड ऑल दैट। सो मतलब उन्होंने इनको इन एरियाज में एक रेगुलेशन लगा दिया कि यहाँ पर कोई भी इंडियन नहीं आएगा जब तक उसको हम परमिट नहीं देंगे। Obviously, it was introduced in Northeast. Which of the following colonial act introduced excluded areas for tribal communities? Government of India Act 1935 ने ये किया था। तो जब भी आप जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तो उसमें ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। दिस एक्ट this whenever you read about this act, तो entirely जब आप उसे थरो रीड करेंगे, काफी बड़ा है ये, मतलब पेज का होगा 1.5 पेज, तो उसमें there will be this point। तो ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है जिन लोगों ने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, लाइक जिसमें रॉलेट एक्ट है। तो ये देखिए अभी सारे एक्ट मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हैं या फिर आपके पास मॉन्टेगो केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, और भी आगे बहुत सारे आएंगे। तो भी प्लान्स थे, कैबिनेट मिशन प्लान हो गया है ना, और देयर वर 2-3 मोर टू गो आउट, माउंटबेटन प्लान हो गया है ना, क्लेमेंट ली का स्टेटमेंट हो गया। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे और आपको थरोली पढ़ने पड़ेंगे सारे एक्ट्स, सारे मिशन, ठीक है। Cripps mission also is important.
Who's the author of The Peasant and the Raj Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India? This is a very, again, the book wala question. Book and the scholar and the author. The book is this. तो आप याद रखेंगे इसका author, इसके author हैं एरिस्टोटल्स. So again, इसके लिए आपको एक लिस्ट दी जाएगी हमारे बैच में जिसमें सारे नाम होंगे और सारे नेम्स होंगे और उसके साथ बुक के नेम होंगे और उनके ऑथर. Slavery in British Dominion. It was written by Dwarkanath Ganguly. Okay. I mean, of course, you might be thinking, ये कौन सी book के नाम आ रहे हैं. I mean, so many people, not all of you, of course, some of you might be knowing all these, but ठीक है, इतना issue नहीं है इसमें. जब आप एक लिस्ट देखेंगे, एक पूरी इंकलकेटेड लिस्ट और उसके साथ उसके नाम होंगे जो ऑथर्स हैं, तो it won't be a problem. नहीं भी आएगा तो मैक्स 1 और 2 नहीं आएगा, बट मोस्टली इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ें, सिलेबस वगैरह देखें अपना. Who's the author of Elementary Aspects of Present Insurgency in Colonial India? It was Ranjit Guha. Okay, so this is important. Which newspaper did Mahatma Gandhi launch in South Africa in 1903? 1903 में अब देखिए गांधी जी जो है महात्मा गांधी वो आए थे साउथ अफ्रीका से वापस. आपको पता होगा जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और उसके कुछ टाइम पहले आए थे, अराउंड 15 इयर्स पहले, नॉट सॉरी 55 इयर्स के अप्रॉक्स के टाइम पीरियड में, है ना. तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी एक मूवमेंट लॉन्च किया था. उन्होंने मिल वर्कर्स को काफी हेल्प किया था. ओके, तो उसको हेल्प करा था जब उन्होंने, और उनकी जो भी उनके साथ गलत हो रहा था वहां पे उसके अगेंस्ट उन्होंने वॉइस रेज करा था. ठीक है, तो आई मीन जो भी इंडियंस स्पेसिफिकली वहां जाते थे काम करने के लिए, ठीक है, इंडेंचर्ड लेबरर्स, उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने काफी कुछ एफर्ट्स किए थे. और भी बहुत सारे इश्यूज पे वहां भी उन्होंने जो है बेसिकली ऑपरेशन के अगेंस्ट उन्होंने वहां भी वॉइस रेज किया था. तो उन्होंने वो सब एक न्यूज़पेपर भी उन्होंने चलाया था इसी पर्पस के लिए, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन. तो बेसिक आई मीन आई विल ब्रीफ यू अबाउट साउथ अफ्रीका में उनका जो रोल रहा है उसके बारे में. सो दैट विल इनकलकेट एवरीथिंग, है ना. ज्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में मेजर क्या किया है. Let's move forward. रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नॉवल लिखा था स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में. अगेन बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट जो स्वदेशी मूवमेंट इंडियंस ने किया था उसके टाइम पे एक नॉवल लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने. उसका नाम, तो जब आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छा वन लाइनर आएगा. ठीक है, तो इट वाज कॉल्ड घेरे बारे. ठीक है, तो घेरे बारे जो है उन्होंने लिखा था नॉवल इस टाइम पे, है ना, अगेन ऑब्वियसली अगेंस्ट द पार्टीशन. And even the partition day was celebrated as Rakhi Bandhan Day. Last year जामिया के पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि जो डे था जिस दिन बंगाल पार्टीशन हुआ, out despite of all the efforts made by them, तो उसको राखी बंधन डे की तरह सेलिब्रेट किया था. Like we will not be separated. I mean both the communities भले ही वो लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं, but we will not fight. We will not just divide our nation into several parts. So that was the unity that was prevalent in those times. Okay, who's the author of Gulamgiri? This is a very easy question. Jyotirao Phule was the author of Gulamgiri. जब आप Jyotirao Phule, हाँ Jyotirao Phule और Jyotiba Phule, it's the same person. उनके बारे में, उनकी वाइफ सावित्री बाई फुले के बारे में भी आप पढ़ेंगे. जब हम लोअर कास्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो 3 लोगों के नाम मेजरली आते हैं, अम्बेडकर, ईवी रामस्वामी नायकर और पेरियार, और ज्योतिराव और ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले. तो ये जो 4-5 नेम्स हैं, तो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लोअर कास्ट मूवमेंट्स. सो उसमें जो है ज्योतिराव फुले हैज प्लेड अ प्रोमिनेंट एंड कमेंडेबल रोल for the education of women, lower caste women specifically. Savitribai Phule became the first teacher to educate the first teacher from lower caste to, who became a teacher and educated other girls for that. So Gulamgiri was a book written by Jyotirao Phule. Okay, so जब आप इनके बारे में briefly पढ़ेंगे तभी ये point होगा उसमें कि like गुलामगिरी उन्होंने लिखा था. You should remember all the books and articles or whatever written by such prominent leaders at least.
who's the author of Dalits and Democratic Revolution, ठीक है, who's the author of Dalits and Democratic Revolution, ये अगेन बुक का नाम है ना, so it was written by गेल ऑम्बे.